The SIT has been formed by the police to probe the matter further in the view of the brutal rape and murder that has happened in Kolkata's RG Kar Medical Hospital, where now the police has formed an SIT and there are 4 different PILs that have also been filed in the Kolkata High Court seeking the CBI probe. Now, the Federation of Resident Doctors Association has also called for a nationwide suspension of elected services in the hospitals to show solidarity with the residents of the RG Kar Medical College. They further demanded urgent action and requested collective support from other doctors. The Deen Dayal Upadhyay Magh Hospital, Lady Hardinge Hospital, Ram Manohar Lohia Hospital have decided to suspend the elective services in the national capital, where Maulana Azad Medical College and its associated hospitals begin indefinite suspension of the elective services, including the OPT wards and OTs starting today. The protests have erupted in several parts of the country, including the national capital, over the alleged rape and gruesome murder of the trainee doctor in Kolkata. The body of the 31-year-old doctor was found with multiple injury marks, suggesting violent assault. There was a bleeding from both her eyes and mouth and injuries over face and nail. She was also bleeding from her private parts, as per the autopsy report, as the report continues to reveal grim details about the way in which she has been raped and murdered. 1 person has been arrested meanwhile in connection with the crime. The accused is reportedly a civic volunteer in Kolkata, and the arrest has taken place by the Kolkata police. But now more doctors have been summoned along with the housekeeping staff, and the student continues to demand and maintain their stand to have a CBI probe in the matter further. Joining me on the broadcast will be Renik. Now, meanwhile, my several doctors who are protesting have reacted to this matter also, including Aviral Mathur, the president of the Federation of Resident Doctors Association. Now, let's listen in. जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोडा ने कल ही एक नेशन वाइड कॉल के लिए, आज से स्ट्राइक के लिए सबको आग्रह किया था। बहुत सारे दिल्ली के आरडीएस, ऑलमोस्ट सारे आरडीएस, और देश भर में बहुत सारे स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र भी आज से हमारे साथ है। तो सब लोग जो हैं, जो एक एपी सेंटर है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे जो हुआ है वो आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडिया में किसी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ। And this is as bad as it can get. किसी का rape followed by murder on duty of a female doctor. This is something जो हमें लगता है कि केवल डॉक्टर्स ही नहीं, आम पब्लिक भी इसकी एक तरीके से निंदा कर रही है, और उनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, और उन्हीं के साथ सौहार्द में हम लोग सारे एक साथ खड़े हैं। प्रोटेस्ट अभी आज से हमने अनाउंस किया है, धीरे धीरे हमारे साथ, क्योंकि हमारा कॉज एक बहुत बड़ा कॉज है। बहुत सारे अस्पताल और बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल जिनमें आरडी अभी धीरे धीरे बन रही है, या सीनियर डॉक्टर्स भी सब एक साथ जुड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट चलने की अभी हमने एक टाइमलाइन तैयार नहीं करी है, बिकॉज आज से हम लोग वी स्टार्ट मीटिंग with the officials. We are hopeful that there will be a positive response, and depending on the response at RG Kar, we will take future course of actions after mutual discussions. हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। हमारी मुलाकात सेक्रेटरी से हो गई है। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, सीबीआई इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। एक्टिव सर्जरी जो है वो हैम्पर्ड होंगी, केवल इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी। इसलिए हम लोग अपने सारे स्टेक होल्डर और सारे आरडीएस से एक मीटिंग करेंगे, फिर आगे का प्लान हम करेंगे। जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन
आप मानिए आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए। लेकिन जो इस तरह की ब्रूटैलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरे जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है इस वजह से। हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। हम लोग आज हेल्थ सेक्रेटरी से मिले थे और बाकी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएस एंड मेडिकल डायरेक्टर थे वो भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। हमें वहाँ पे एश्योरेंस दिया गया है और हमारी जो मांगे हैं अगर वो रिटर्न में अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग बाकी सारे स्टेक होल्डर से हम मीटिंग करके और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हम लोग वो डिसाइड करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.